Alright, let's start with the explanation. Inverse functions. हमने quadratics के अंदर बहुत कुछ पढ़ा, सॉरी quadratics पढ़ा, फिर हमने we have studied functions. Functions में हमने range of, firstly basics of functions, then range of linear function, then range of quadratic function, then range of reciprocal functions. Then we studied रेसिप्रोकल फंक्शन के बाद स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज देखी, फिर हमने कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना सीखा, फिर कॉम्पोजिट फंक्शन का डोमेन निकालना सीखा, फिर कॉम्पोजिट फंक्शन की रेंज निकालना सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ सीखा है। बस कुछ और एस्पेक्ट्स रह गए जिसके बाद इंशाल्लाह हमारी एक्सपेंशन फंक्शंस की मुकम्मल हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इनवर्स फंक्शंस। Now, if we talk about inverse functions, then in O levels and IGCSE, we have already understood how to find the inverse of a function. एक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये बात हमें ओ लेवल मैथमेटिक्स और IGCSE मैथमेटिक्स से अच्छी तरह पता है, बट मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा, प्रॉपर रिकॉल करवाऊंगा. But over there, usually the function that we were facing was a linear function, finding the inverse of which was very, very easy. Now, when we are dealing with multiple functions, especially quadratic function, then we have to understand few things that were not previously there in O levels. So there are some new things that we have to study. तो अब सबसे पहली चीज, वहां तो खाली इतना कहा जाता था कि भाई इनवर्स फंक्शन निकालो, यहाँ तो हमें ये भी देखना है कि वेदर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट. क्या इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा. तो पता चला कि हर फंक्शन का इनवर्स नहीं होता. दैट इज व्हाई एट टाइम्स द एग्जामिनर आस्क्स, डज दिस फंक्शन हैव एन इनवर्स. क्या इस फंक्शन का इनवर्स होगा. हम बोलेंगे यस, then we have to give the reason for our answer. If we are saying no, then also we have to give the answer, reason for our answer. तो कभी फंक्शन का इनवर्स होता है, कभी फंक्शन का इनवर्स नहीं होता. That depends upon situation to situation, question to question. So we have to check it out. So there has to be a certain criteria on the basis of which we are to judge whether a function has an inverse or not. जैसे हमने functions की बुनियाद जब कायम की, when we started off with the definition of basic definition of functions as to what a function is, we sorted out that for a function to exist, every single domain value should have exactly one image. हर डोमेन की exactly एक image होनी चाहिए, ना एक से ज्यादा हो ना एक से कम. Means if there is a specific domain value which has no image, किसी डोमेन वैल्यू की कोई इमेज हो ही ना तो भी मसला, और कुछ डोमेन वैल्यू ऐसी हो जिसकी दो इमेजेस हो, ये भी मसला है. तो उसके लिए हमने ग्राफिकली सोचा था, वी यूज टू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट. इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन अ ग्राफ and if that vertical line intersects the curve at exactly one point, अगर एक vertical line exactly one point पे intersect करेगी, so this means that the particular function, the particular given relationship is a function. And if the vertical line intersects at 2 points, then the given relation is not a function. So function की definition बुनियाद ये बताती है कि function तब exist करता है जब vertical line ग्राफ पे बना के चेक की जाए और वो exactly एक पॉइंट पे intersect करे. तो अब हम बात कर रहे हैं inverse functions की. तो यहाँ पर horizontal line test होता है. function की वैलिडिटी चेक करने के लिए we draw vertical lines. Vertical line intersecting at one point, it is a function. Vertical line intersecting at more than one point, it is not a function. Over here, we use horizontal lines. We draw horizontal lines on the graph and check. If horizontal line intersect at one point, the function has an inverse. If the horizontal line intersects at more than one point, then the given relationship is a function. Function तो वो रहेगा. वर्टिकल लाइन में तो ये होता था, वो फंक्शन ही नहीं होता था दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की वजह से. हॉरिजॉन्टल लाइन वाला मामला ये है कि फंक्शन तो वो रहता है बट वो वन टू वन फंक्शन नहीं रहता, इसीलिए उसका इनवर्स नहीं होता. तो मैंने शुरुआत में ये बताया नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं कि फॉर अ फंक्शन टू हैव एन इनवर्स, इट मस्ट बी वन टू वन. फंक्शन को वन टू वन होना चाहिए. ओनली अ वन टू वन फंक्शन हैज एन इनवर्स. अब वन टू वन फंक्शन क्या थे, तो हमने नोट नंबर 1 देखें, ऑल लीनियर फंक्शंस आर वन टू वन. हर लीनियर फंक्शन वन टू वन होता है. तो वन टू वन क्या होता है, जरा मैं आपको ग्राफिकली एक दफा दिखाऊं.
वन टू वन जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो हमने बात की थी इस पे। ये देखें, ये है लीनियर फंक्शन। वन टू वन फंक्शन का मतलब है वन डोमेन, एग्जैक्टली वन इमेज, देन अनदर डोमेन, एवरी डोमेन शुड हैव एग्जैक्टली वन इमेज। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, सही है। बट डोमेन वैल्यू वन हैज इमेज थ्री, डोमेन वैल्यू टू हैज इमेज फाइव, डोमेन वैल्यू थ्री हैज इमेज सेवन। हर डोमेन की एक इमेज और हर इमेज का एक डोमेन। क्योंकि अगर मैं यहां पर कोई रिलेशनशिप में आ जाऊं, ये देखें, हर डोमेन की एक इमेज होनी चाहिए थी, तो वन की भी इमेज फाइव है, टू की भी इमेज फाइव है। तो रिक्वायरमेंट फंक्शन की एग्जिस्टेंस की ये होती है कि हर डोमेन की एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। अब वो इमेज यूनिक हो या ना हो, ये कोई मसला नहीं। तो वन की इमेज फाइव है और टू की भी इमेज फाइव है, तो इसका मतलब फाइव इज द शेयर्ड इमेज ऑफ वन एंड टू। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन। क्या कहते हैं? मैनी टू वन फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो है वो मैनी टू वन फंक्शन कहलाता है। तो मैंने बताया था कि मैनी टू वन रिलेशनशिप इज अ फंक्शन, बट वन टू मैनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो मैंने वन टू मैनी की मिसाल भी दी थी कि भाई ये जो नंबर वन है, ये वन टू मैनी है। वन डोमेन मोर देन वन इमेजेस, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज फंक्शंस की डेफिनेशन कहती है हर डोमेन की एग्जैक्टली एक इमेज होनी चाहिए। और यहाँ की डोमेन वैल्यू वन हैज टू इमेजेस, this means it is a one to many relation, and one to many is not a function. But many to one is a function, but it is not a one to one function. This means many to one functions does not have an inverse. वन टू मैनी तो फंक्शन ही नहीं होता। जब फंक्शन ही नहीं है तो उसका इनवर्स कैसे होगा? बट मैनी टू वन फंक्शन तो होता है, बट क्योंकि वो वन टू वन फंक्शन नहीं होता, मैनी टू वन फंक्शन होता है, लिहाजा उसका इनवर्स नहीं होता। तो एक बात सॉर्ट आउट हो गई कि फॉर अ फंक्शन टू हैव एन इनवर्स इट मस्ट बी वन टू वन। इफ द फंक्शन इज नॉट वन टू वन इट विल नॉट हैव एन इनवर्स। पहली बात ये सॉर्ट आउट हो गई। तो मैंने दिखा दिया वन टू वन का मतलब होता है हर डोमेन की एक इमेज और हर इमेज का एक डोमेन। तो ओनली अ वन टू वन फंक्शन हैज एन इनवर्स। अच्छा, कभी कभार ग्राफ्स होते हैं और द ग्राफ्स आर गिवन एंड वी आर आस्क्ड टू डिटरमिन whether the function has an inverse. अच्छा, कभी ग्राफ्स नहीं होते तो कॉन्सेप्चुअली वैसे ही पूछता है बताओ फंक्शन का इनवर्स है या नहीं। तो कैसे डिटरमिन करते हैं? विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू चेक इट आउट। बट अगर ग्राफिकली चेक करना हो तो फॉर अ फंक्शन टू बी वन टू वन each horizontal line must intersect the graph of y equals to fx at exactly one point. फंक्शन की एग्जिस्टेंस के लिए वी ड्रॉ वर्टिकल लाइंस। इफ इट intersects at one point it is a function, intersecting at more than one point it is not a function. But if we talk about horizontal line, every horizontal line must intersect the graph at exactly one point. अगर एक horizontal line एक से ज्यादा point पे intersect करे तो क्या वो फंक्शन ही नहीं रहेगा? नहीं नहीं नहीं, फंक्शन तो वो होगा, वो मैनी टू वन फंक्शन होगा, वो मैनी टू वन फंक्शन होगा। तो मैनी टू वन फंक्शन जो है, मैनी टू वन रिलेशनशिप जो है, वो फंक्शन तो होता है बट उसका इनवर्स नहीं होता। तो बॉटम लाइन वन टू वन होना जरूरी है फंक्शन का अगर हम चाहते हैं कि उसका इनवर्स निकालें, वरना फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल सकता। और ग्राफिकली अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि फंक्शन का इनवर्स है या नहीं, तो मैं ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना के चेक करूंगा। इफ हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट देन इट हैज एन इनवर्स because it is a one to one function. But if a horizontal line intersect at more than one point then it does not have an inverse because it is not a one to one function. तो रीजन जब देना होता है ना, बताओ उसका इनवर्स है, तो बोलेंगे यस इट हैज एन इनवर्स। व्हाई? बिकॉज इट इज अ वन टू वन फंक्शन। क्या इसका इनवर्स है? नो, इट डज नॉट हैव एन इनवर्स। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। यही रीजन बनता है। ये वन टू वन फंक्शन है तो इसका इनवर्स है, ये इनवर्स, ये वन टू वन फंक्शन नहीं है तो इसका इनवर्स नहीं। सिंपल। अच्छा, पहला नोट हमें बता रहा है ऑल लीनियर फंक्शंस आर वन टू वन। जब हमने फंक्शंस में रेंज निकालना स्टार्ट की, द फर्स्ट थिंग वी स्टडीड वाज फाइंडिंग द रेंज ऑफ अ लीनियर फंक्शन। fx equals to 2x plus 3, fx equals to 2x minus 3, fx equals to minus 2x plus 5। जो y equals to mx plus c वाला रिलेशनशिप होता है जिसमें x की पावर 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन। एवरी लीनियर फंक्शंस
every linear function is 1 to 1, therefore every linear function has an inverse. तभी मैंने कहा ना ओ लेवल IGCSE में हमें ये कहता ही नहीं था कि भाई इनवर्स, पूछता ही नहीं था कि इनवर्स है या नहीं, क्योंकि उसमें इनवर्स निकल नहीं रहा होता था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर गिवन अ लीनियर फंक्शन, या अगर कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक होता भी था तो वो होता ही इस तरह के था कि वो 1 to 1 होता था। भारत वैसे क्वाड्रेटिक होता नहीं था, लीनियर ही होता था। तो ऑल लीनियर फंक्शन आर 1 to 1, सही है। लेकिन अब हमारे सिलेबस में तो खाली वन लीनियर नहीं है, इसके अलावा भी है। तो लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का इनवर्स बहुत ज्यादा आता है, तो इस पे मुझे बहुत बात करनी है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर नॉट 1 to 1। पहली लाइन जब पढ़ी, पहला जुमला पढ़ा, तो आपको पता चला क्वाड्रेटिक फंक्शंस 1 to 1 नहीं होते। अच्छा भाई, क्वाड्रेटिक फंक्शंस अगर 1 to 1 नहीं होते तो क्या उसका इनवर्स कभी निकल ही नहीं सकता? हाँ, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 to 1 नहीं है, उसका डोमेन ऐसा दिया हुआ है कि वो 1 to 1 नहीं है, लिहाजा उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। क्या कभी भी इनवर्स नहीं निकल सकता? नहीं भाई, निकल सकता है। कैसे निकल सकता है सर? 1 to 1 नहीं है, फिर कैसे इनवर्स निकलेगा? ओ भाई, तो उसको 1 to 1 बनाना पड़ेगा। सर, एक फंक्शन 1 to 1 नहीं है, उसको 1 to 1 कैसे बनाएंगे? टू मेक इट 1 to 1 वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन। वो जो डोमेन है ना, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर वो होगा तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का फिर 1 to 1 क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि 1 to 1 क्वाड्रेटिक फंक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय डिफॉल्ट आर नॉट 1 to 1, बट इफ वी नीड टू मेक इट 1 to 1 वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन। सर क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? तो अब सुने मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि अगर ये टर्निंग पॉइंट है, ये मेरा कर्व है, ये मेरा कर्व है, सही है। नाउ वी हैव 1 3 comma 1 as our turning point. Our turning point is 3 comma 1. Okay, now if the domain is x belongs to real number, so the horizontal line will intersect at 2 points. This means it is not a function, not, sorry, it is a function, it is not a 1 to 1 function. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ not 1 to 1. Why not 1 to 1? Because if you are drawing horizontal line, if you are drawing horizontal lines, it is intersecting at 2 points. We can see 1 point of intersection, 2 points of intersection, not 1 to 1. अच्छा, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्चुअली मतलब क्या है? कॉन्सेप्चुअली इसका मतलब सुने, मिसाल है, समझ लेंगे 1 है, या ये समझ ले 2 है और ये 4 है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल है। और ये आपका जो है, ये लाइन जो है, जो ग्रीन वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये इंटरसेक्ट हो रही है, ये भी 2 पे इंटरसेक्ट हो रही है। अब देखें यहाँ पर पता ये चला कि एक्स की वैल्यू जो 2 है और जो एक्स की वैल्यू 4 है, दोनों की एक ही इमेज है, वो है 2। देखें ये कौन सा फंक्शन बन गया? कॉन्सेप्चुअली ग्राफिकली क्या सीखा है? एक्स इज द डोमेन, वाई इज द इमेज। डोमेन वैल्यू 2 जो है उसकी भी इमेज 2 है, और जो डोमेन वैल्यू 4 है उसकी भी इमेज 2 है। तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन का रट्टा थोड़ी मारना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाई हॉरिजॉन्टल लाइन intersecting at 2 points means that it is not a 1 to 1 function, because if we draw horizontal line, then this means there are two values of x for which we have a single y. So over here the domain value 2 has image 2 and the domain value 4 also has image 2. This means it is a many to one function. It is a many to one function. So if a function is many to one, it does not have an inverse. It is a function. It is a function. Many to one relationship is a function, but it is not 1 to 1. So it means it has no inverse. It has no inverse. Sir, so this means whenever we see a quadratic function, we should always write that it does not have an inverse. No, not always. Nothing is always in mathematics. We have to restrict our domain to make it 1 to 1. Now this is what we need to see. अब देखिए मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, अब इसको एक्सरसाइज को अब देखिए मैं क्या करवा रहा हूँ। फंक्शन 1 to 1 नहीं था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 1 to 1 बनाने के लिए मैंने क्या करना है, अब देखिएगा।
Now to make it 1 to 1, I will erase this part. सर ये क्या किया आपने? Now I have restricted the domain. Above, if I give example, this thing, the domain was, this is not 1 to 1 because the domain was x belongs to real number. मेरा domain x belongs to real number था. But over here, the domain has now been restricted and has become greater than 3. Greater than 3 कह लें, greater than equals to 3 कह लें. Any domain which is targeting the right side of turning point, or any domain that is covering the left side of turning point, will make the quadratic function 1 to 1. क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 to 1 बाय डिफॉल्ट नहीं होता, उसे 1 to 1 बनाना पड़ता है. उसे 1 to 1 बनाने के लिए वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन. उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है. डोमेन को कहां से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है? डोमेन को उसके टर्निंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है. ऐसा डोमेन डिसाइड करना पड़ता है जो या तो टर्निंग पॉइंट की राइट साइड को कवर करे या टर्निंग पॉइंट की लेफ्ट साइड को कवर करे. हर वो डोमेन जो टर्निंग पॉइंट की राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स को टारगेट कर रहा है, बेशक लेफ्ट साइड थोड़ी सी हो, राइट साइड थोड़ी ज्यादा हो, थोड़ा भी अगर राइट और लेफ्ट दोनों कवर कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 नहीं रहेगा. सर ऐसा क्यों, ये भी बता दें. बेटा ये डोमेन होता, लेट सपोज ग्रेटर देन 2 डोमेन होता, तो आपका ये कर्व बनता, इतना कर्व बनता. आपने कहा सर हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर बनाई तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, तो बेटा कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसी है ना जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी निकल आए जो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन 1 to 1 नहीं है. तो फॉर अ क्वाड्रेटिक फंक्शन टू बी 1 to 1, वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन. कहां से डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट से. टर्निंग पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वहां से रिस्ट्रिक्ट करना है. तो ऐसा डोमेन कि सिर्फ टर्निंग पॉइंट की राइट साइड कवर हो, या अगर ये ना होता, ये हिस्सा होता, तो फिर ये काट देता. फिर डोमेन होता एक्स इज लेस देन 3. लेस देन 3 कर लें, लेस देन 2 कर लें, क्योंकि अगर लेस देन 2 भी होगा, लेट सपोज ये कर्व का हिस्सा होगा लेस देन 2, टर्निंग पॉइंट तक भी नहीं पहुंच सका, ये सब हट गया. लेस देन 1 कर लें. एनी डोमेन विच इज कवरिंग प्योरली द लेफ्ट साइड, एनी डोमेन विच इज कवरिंग प्योरली द राइट साइड ऑफ द टर्निंग पॉइंट विल बी द राइट डोमेन टू मेक इट 1 to 1. हर वो डोमेन जो टर्निंग पॉइंट की या तो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड को कवर करे, एक्स कोऑर्डिनेट के राइट पर डोमेन हो, एक्स कोऑर्डिनेट से ही स्टार्ट हो जाए या एक्स कोऑर्डिनेट के बाद स्टार्ट हो और सिर्फ राइट साइड को कवर कर रहा हो, या कोई ऐसा एक्स डोमेन जो टर्निंग पॉइंट से ही शुरू होकर लेफ्ट साइड को कवर करे या टर्निंग पॉइंट से थोड़ा पहले से लेफ्ट साइड को कवर करे लेकिन प्योरली लेफ्ट साइड को कवर करे, तो ऐसा फंक्शन, ऐसा डोमेन फंक्शन को 1 to 1 बना देता है, लिहाजा उसका इनवर्स निकल आता है. तो फॉर अ फंक्शन टू हैव एन इनवर्स इट मस्ट बी 1 to 1. क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय डिफॉल्ट आर नॉट 1 to 1. To make it 1 to 1, we need to restrict its domain. We need to restrict its domain from where? We need to restrict its domain from the x coordinate of turning point. ऐसा डोमेन देना है जो टर्निंग पॉइंट की सिर्फ राइट साइड को कवर करे या लेफ्ट साइड को कवर करे. बहुत दफा कह दिया सर, कितनी दफा कहेंगे? अब थोड़ा सा पढ़वा देना, तो आइए पढ़ लेते हैं. Quadratic functions are not 1 to 1. To make them 1 to 1, we must restrict their domain from the x coordinate of turning point. कहां से रिस्ट्रिक्ट करना है बेटा? टर्निंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से रिस्ट्रिक्ट करना है. टर्निंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से रिस्ट्रिक्ट करके क्या राइट साइड कवर करनी है या लेफ्ट साइड? बेटा दोनों कर सकते हैं. तो यहां पर आ गया, डोमेन शुड ईदर कवर द राइट हैंड साइड ऑफ टर्निंग पॉइंट और इट शुड कवर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टर्निंग पॉइंट. ऐसा कोई डोमेन जो टर्निंग पॉइंट की लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को कवर करे, बेशक लेफ्ट साइड थोड़ी सी कवर हो, राइट साइड ज्यादा कवर हो, या बेशक राइट साइड थोड़ी सी कवर हो, लेफ्ट साइड ज्यादा कवर हो, वो डोमेन एक्सेप्टेबल डोमेन नहीं है. एक्सेप्टेबल डोमेन तब होगा जब फंक्शन जो है वो प्योरली 1 to 1 हो, मतलब वो ऐसा डोमेन उसका हो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो सिर्फ राइट साइड, जो प्योरली राइट साइड कवर कर रहा हो या प्योरली लेफ्ट साइड कवर कर रहा हो. यहां तक मुझे बताएं, ये इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? एक्नॉलेजमेंट सबने देनी है, जितने पार्टिसिपेंट्स भी हैं, कोई बगैर एक्नॉलेजमेंट के नहीं जा सकता. बताया करें चैट पे, एवरीवन नीड्स टू पार्टिसिपेट. आई विल काउंट द नंबर ऑफ मैसेजेस. सब बताएं, शाबाश.
नहीं है सबके जवाब? जल्दी से बेटा, सबका मतलब सबका जवाब आना चाहिए ना। ये चैट के अलावा थम्स अप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो थम्स अप का जो ऑप्शन होता है ना, वो नजर आता है बहुत वाजे तौर पे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में, तो वो देखना, उससे ट्रैक करना आसान हो जाता है। जरा सब थम्स अप करके बताएं एक दफा। आई डेंट अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल तो मैंने पढ़ाया गए हैं। एग्जाम्पल तो पढ़ाया ही नहीं है भाई हारून। आई एम अबाउट टू टीच द एग्जाम्पल, डोंट वरी। हाँ थम्स अप, जब तक मैं बोलूँ नहीं थम्स अप हटाइएगा मत, रहने दीजिएगा। सबके थम्स अप एक साथ आने चाहिए, थम्स अप करें। जिसका नहीं आएगा इसका मतलब उसको समझ नहीं आया। चलें अब थम्स अप शुरू करते हैं कभी कभार, सही है। चलें अभी, कुछ लोगों का है कुछ का नहीं है। चलें, एग्जाम्पल तो मैंने समझाया ही नहीं है। हाउ डू यू डू द थम्स अप? ओके, समवन विल गाइड। थम्स अप कैसे करते हैं? मेरे पास तो यहाँ पर रिएक्शंस आ रहे होते हैं ना, रिएक्शंस, यस। मेरे पास तो मोर में रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। आपके जहाँ रेज हैंड होता है ना, वहीं रिएक्शंस का ऑप्शन होता है, चेक करें। थम्स अप, क्लैप, गॉट इट, ओके ग्रेट। चलें डन, आई सॉ योर थम्स अप हमजा, ग्रेट। चलें, ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। fx equals x minus 2 whole square plus 3 for x is greater than equals to k। अब देखें, मैंने आसानी के लिए एग्जांपल्स ऐसे बनाए हैं कि जिसके अंदर ऑलरेडी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में है। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म ऐसी फॉर्म है जिससे मुझे टर्निंग पॉइंट का फौरन पता चल जाता है। एंड इफ आई नो व्हाट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट इज, देन इफ एग्जामिनर आस्क्स मी टू सजेस्ट अ सुटेबल डोमेन, आई कैन डू दैट। सुटेबल डोमेन फॉर विच फंक्शन हैज एन इनवर्स, डोमेन की सजेशन बाज औकात मांगी होती है, लेकिन नॉर्मल जो सवाल आता है वो उसी तरह आता है जैसे एग्जांपल में बना के दिखाया। नाउ व्हेन यू सी अ फंक्शंस क्वेश्चन, one of the parts is exactly the same as example 1 2 and 3। कोई एक ना एक पार्ट ऐसा होता है जो एग्जाम्पल 1 2 3 की तरह होता है। तो मैंने तीन एग्जाम्पल्स बनाएंगे समझाने के लिए कि किस किस तरह एग्जामिनर पूछ सकता है। तो द फर्स्ट थिंग, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस थ्री फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। स्टेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ हैज एन इनवर्स। के की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ जिसपे फंक्शन एफ का इनवर्स हो। तो हमेशा याद रखें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी होगी तो ही विल आस्क फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और अगर लेस देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी होगी तो द एग्जामिनर विल आस्क फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू। ये याद रख लें ये बात। मतलब इसमें कोई आपको सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, डोमेन देखें, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखा होगा, और अगर जो है लेस देन इक्वल्स टू के है तो यहाँ लार्जेस्ट वैल्यू लिखा होगा। ये दो चीजें देखें मैच करेंगे। क्यों भाई? ग्रेटर देन इक्वल्स टू के का मतलब के या उससे ज्यादा, के या उससे ज्यादा, तो के वाली जो वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। एंड लेस देन इक्वल्स टू के का मतलब के या उससे कम, के या उससे कम, इसका मतलब जो के वाली वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट वैल्यू होगी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि के की वैल्यू दोनों केसेस में होगी क्या? तो याद रख लें, स्मॉलेस्ट पूछी जाए या लार्जेस्ट पूछी जाए, this smallest or largest value on the basis of which the function will have the function f will have an inverse will be the x coordinate of turning point। याद रख लें ये बात। जब आपको quadratic equation दिया हुआ हो और पूछे smallest या largest value of k बताओ for which function has an inverse, तो function has an inverse when function is 1 to 1। For function to be 1 to 1, it should be restricted, the domain must be restricted। The domain must be restricted from where? It must be restricted from x coordinate of turning point। The domain must be restrict their domain from the x coordinate of turning point। ये बॉटम लाइन है। कहां से रिस्ट्रिक्ट करना है?
रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। लिहाजा जब भी आपको इस तरह से डोमेन रिस्ट्रिक्शन हो और कहा जाए बताओ वैल्यू ऑफ के क्या होगी, चाहे वो लार्जेस्ट पूछे चाहे वो स्मॉलेस्ट पूछे, आपने सिर्फ और सिर्फ टर्निंग पॉइंट का एक्स उठाना है और आंसर में पेश कर देना है। तो अगर मैं यहां से कोऑर्डिनेट्स देखूंगा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट, जी पार्टिसिपेट करें जरा चैट पे बताएं, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, जबरदस्त। हसन और ईसा सबसे पहले बच्चे हुए, हमजा थर्ड, उन्होंने आंसर दिया। 2, 3 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, वेरी गुड सफा। 2, 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 3 है। तो टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2। Therefore the value of k will be 2, the value of k will be 2, k equals to 2 will be my answer. Okay, in the second example, this example is same, the same function. The only difference is that of the inequality sign. So in the example 1, it is smallest. In the example 2, it is largest. But will the answer of k change? Will the value of k change? No, it will not. नो इट विल नॉट। दोनों एग्जाम्पल बनाने का मकसद ये था, ये बताना था कि स्मॉलेस्ट हो या लार्जेस्ट हो, आंसर में कोई तब्दीली नहीं है, आंसर हमेशा टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा। लिहाजा यहां पर टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, देयरफॉर टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, लिहाजा के का आंसर यहां भी 2 ही होगा। क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, कंक्लूजन ये निकला कि 1 to 1 बनाने के लिए डोमेन को टर्निंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब सोचें, 2 की वैल्यू को यहां रखें, डोमेन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगर किसी फंक्शन का टर्निंग पॉइंट 2, 3 है, 2, 3 टर्निंग पॉइंट है, तो ये वाली चीज होगी ही नहीं, सिर्फ ये वाली चीज होगी, तो फंक्शन बन गया ना 1 to 1। इस तरह का शेप आ जाएगा 1 to 1 बनने के लिए, ये शेप आएगा और यहाँ पर ये शेप आएगा। ये टर्निंग पॉइंट पे आके खत्म हो रहा होगा, ये वाला टर्निंग पॉइंट से शुरू हो रहा होगा। टर्निंग पॉइंट से पे खत्म हो रहा होगा, ये टर्निंग पॉइंट से शुरू हो रहा होगा। ऐसे बना लिया, सही है, स्टार्टिंग विद द फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट एंड देन गोइंग ऑन एंड कमिंग फ्रॉम अप एंड ending at the turning point. Now that turning point is a minimum point. How we know? Because the coordinate, because the coefficient of the bracket is +1। तो अगर +1 है, इसका मतलब टर्निंग पॉइंट मिनिमम होगा। ये सब हमने क्वाड्रेटिक्स में पढ़ लिया है। सवाल फंक्शंस के जब आएंगे तो हर सवाल में क्वाड्रेटिक की नॉलेज रिक्वायर्ड होगी। तो अगर क्वाड्रेटिक्स रिवाइज नहीं किया तो कर लें भाई, मजीद डिले मत करें। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर जो मैंने बात कही कि डोमेन की रिस्ट्रिक्शन कहां से, एक्स कॉर्नर ऑफ टर्निंग पॉइंट से। एग्जाम्पल नंबर 3, शेप भी बता दिया कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू के में के स्मॉलेस्ट वैल्यू क्यों है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। डोमेन कैन बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एज वेल। डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी हो सकता है, सुटेबल डोमेन। सुटेबल डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी हो सकता है। ये सारे वो डोमेन होंगे जिसमें फंक्शन 1 to 1 होगा। तो मैंने क्या कहा कि टर्निंग पॉइंट की प्योरली राइट साइड कवर हो रही हो या प्योरली लेफ्ट कवर हो रही हो, चाहे स्टार्टिंग डोमेन की टर्निंग पॉइंट के एक्स से हो या ना हो, अगर टर्निंग पॉइंट के एक्स के बाद डोमेन शुरू हो रहा है या डोमेन टर्निंग पॉइंट के एक्स से पहले शुरू हो रहा है, दोनों सूरतों में फंक्शन 1 to 1 रहता है। लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी थी तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमेशा वही होती है जो टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। लिहाजा लेस देन इक्वल टू के की बात की जाए तो हर वो डोमेन जो टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड को कवर कर रहा है वो 1 to 1 रखेगा फंक्शन को। बट यहाँ क्योंकि लार्जेस्ट पूछी जा रही है, लिहाजा लार्जेस्ट वही होगी जो टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। बॉटम लाइन, स्मॉलेस्ट पूछे लार्जेस्ट पूछे, वैल्यू ऑफ एक्स ही देनी होती है के आंसर के तौर पे। तो will we get the marks if we give the answer in the form x is greater than equal to 2 instead of, no, you'll not get the mark। मार्किंग स्कीम में पेनलाइजेशन हो जाती है इसकी। आपसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ के पूछी है, तो आपने के का आंसर देना है। जब तक के का आंसर एग्जामिनर नहीं देखेगा मार्क्स कट जाएंगे। ये मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ भी होता है, नो मार्क इफ द स्टूडेंट गिवन दिस। सही है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे देना है कि आपने कहा 2 फिट कर देता हूँ और आंसर डोमेन का देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, नो, जो मांगा है वही देना है। बोलता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के बताएं, तो यू विल से द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इज 2। यस, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डजंट अफेक्ट द आंसर। ये केस है तो आंसर इफेक्ट नहीं होगा। सही है, इस तरह का केस है तो आंसर इफेक्ट नहीं होगा, वरना कोई सिनेरियो कोई और हो तो पता नहीं अभी। लेकिन मैं असल में कोई भी चीज हतमी फैसला देने से इसलिए डरता हूँ
कुछ बच्चे कहते सर हमेशा ऐसा ही होगा। फिर कुछ अलग सवाल होता है, वो कहते सर आपने तो ये कहा था स्मॉलेस्ट का लफ्ज हो लार्जेस्ट का लफ्ज हो एक ही काम करना होता है। तो यहाँ इस तरह का सिनेरियो होगा तो स्मॉलेस्ट हो या लार्जेस्ट हो एक ही काम है, आंसर में इफेक्ट नहीं आएगा। बट कोई और सिनेरियो हो तो फिर देखा जाएगा। सही है। तो मैथ्स में कोई चीज हमेशा नहीं होती, मैं हमेशा का कभी फतवा नहीं लगाता। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 3, सेम फंक्शन है जो यहाँ पर था, सेम फंक्शन है, बट इस दफा डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर है। डोमेन क्या है भाई? बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो आपका कर्व पूरा कर्व बन जाएगा, पूरा कर्व बन जाएगा। जब फुल कर्व बन जाएगा तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? डिटरमिन वेदर एफ हैज एन इनवर्स जस्टिफाइंग योर आंसर। हमेशा इसी तरह का सवाल आता है। बताएं बच्चों क्या यहाँ पर इनवर्स होगा, और जस्टिफिकेशन बताएं। जस्टिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। यस, पार्टिसिपेशन चैट पे सबने लिखना है। डिटरमिन वेदर एफ इज एन इनवर्स, बताओ क्या इसका इनवर्स है या नहीं। गिव योर जस्टिफिकेशन। यस, इफ इट्स अ यस देन व्हाई इट्स अ यस, इफ इट्स अ नो देन व्हाई इट्स अ नो। यस, वेटिंग फॉर द पार्टिसिपेशन ऑन द चैट, क्विक। मैं भी थम्स अप और थम्स डाउन से बता रहा हूँ कि आपका आंसर सही है नहीं। यस, पार्टिसिपेशन, शाबाश। क्या हुआ, मुजाहिदीन कहाँ है सारे? आधे जवाब दे रहे हैं, आधों ने जवाब ही नहीं दिया। बेटा जवाब तो दें। कैसे पता चलेगा अंडरस्टैंडिंग आ रही है नहीं आ रही? जवाब के बगैर नहीं हो सकता। असद जावेद कहाँ हो? हाँ, ये भी एक जवाब सही है। नो नो, बिकॉज द हॉरिजॉन्टल लाइन विल इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, सो इट इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। सो इट्स नॉट अ वन टू वन फंक्शन। वेरी गुड लाइवा, द गुड गुड अटेम्प्ट, सही है, आंसर सही है। लेकिन हम यूजुअली जो है ना, ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्टिंग एट मोर देन वन पॉइंट वाले से ज्यादा हमारे लिए वैलिड होता है। द फंक्शन डज नॉट हैव एन इनवर्स बिकॉज इट इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। Why? Because the domain x belongs to real number. So whenever there is a quadratic function and the domain is x belongs to real number, or the domain is such that it is covering the left side and the right side both. जैसे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट जो है 2,3 है। So if the domain is x is greater than 0, let's suppose. Now the domain x greater than 0 means some part of some of it. Yes, definitely Safa, you missed the domain. That's why you were not able to give the correct answer. बट इट्स ओके, कोई मसला नहीं, स्टार्टिंग है कोई मसला नहीं, बस डोमेन को देखें, प्रॉपर देखें। तो अगर आपका डोमेन टर्निंग पॉइंट की लेफ्ट साइड को भी कवर कर रहा है और टर्निंग पॉइंट की राइट साइड को भी कवर कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो एक्स ग्रेटर देन जीरो डोमेन है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डोमेन्स विच इज कवरिंग द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड बोथ। तो जरूरी नहीं है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो तो ही फंक्शन वन टू वन नहीं होता। बाज औकात फंक्शन का डोमेन कुछ और होता है, मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं होता, उसके बावजूद भी वो वन टू वन नहीं होता। बस क्राइटेरिया क्या है? कोई डोमेन अगर टर्निंग पॉइंट का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कवर कर ले तो ऐसा फंक्शन फिर वन टू वन नहीं रहता, लिहाजा उसका इनवर्स नहीं होता। बट इफ द डोमेन इज सच दैट इट इज कवरिंग द ओनली द राइट साइड ऑफ द टर्निंग पॉइंट और ओनली द लेफ्ट साइड, ओनली का लफ्ज याद रखें, ओनली राइट साइड कवर होनी चाहिए और प्योरली, और ओनली लेफ्ट साइड कवर होनी चाहिए, देन इट विल बी वन टू वन फंक्शन एंड इट विल हैव एन इनवर्स। ओवर हियर द आंसर इज डिटरमिन वेदर एफ इज एन इनवर्स। नो, एफ हैज नो इनवर्स, या एफ does does not, no, f doesn't have an inverse. F does not have an inverse. Why man, why? क्यों? Because it is not
a one to one function, तो ये एक बेसिक आंसर अपने जहन में रख लें आप। फंक्शन का इनवर्स है, यस। Why? Because it is a one to one function. Yes, the function has an inverse. Why? Because it is a one to one function. Whether f has an inverse, it is one function, it should be has. No, f does not have an, f does not has an, नहीं has तो नहीं होगा, doesn't के साथ तो है भी आएगा ना शायद। No, f does not have an inverse. No, f does not have an inverse because it is not a one to one function. इसका inverse क्यों नहीं है? क्योंकि ये one to one function नहीं है। सही है। अच्छा, लाइबल हुदा लाइबा अब्बासी, आप लोगों ने फाइल डाउनलोड कर ली है? प्रिंट करवानी है आपको? ये हमारे 88 पेजेस के, नहीं 87 पेजेस के जो नोट्स है ना P1 के, ये आप लोगों को प्रिंट करवाने। प्रिंट करवाएंगे तो इसी में नोट्स ऐड करते रहेंगे साथ साथ, राइट। सारा टाइप टाइप वाला काम आपके पास आ जाएगा और आपको खाली एड ऑन्स करने होंगे। तो प्लीज बताएं मुझे, प्रिंटिंग हुई है नहीं हुई, बताएं जरा जल्दी से चैट पे। मीनवाइल आई एम मूविंग फॉरवर्ड। सही है, करवा लीजिएगा प्लीज, जल्द से जल्द करवा ले। सही है, जल्द से जल्द करवा लीजिएगा ताकि फिर आप लोग इसी में ऐड ऑन करते रहे, नोट्स बन जाएंगे प्रॉपर एक साल बाद इंशाल्लाह। मतलब पूरा साल जब गुजर 2 4 6 महीने में, मतलब फर्स्ट टर्म में, मतलब शुरू में 3 4 महीने में हमारा P1 खत्म होता है। चार P1 बड़ा कंपोनेंट है, ज्यादा टाइम लगता है, तो होगा, टाइम तो लगेगा। तो उसके बाद सेकंड कंपोनेंट होगा, उसमें भी इसी तरह करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स। अब क्या हुआ, इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कोई आपसे पूछेगा कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्यों नहीं करता, तो आपको पता चल गया वन टू वन है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वन टू वन नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वन टू वन क्यों नहीं है, वन टू वन क्यों है, ये भी पता चल गया कि अगर अगर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगी तो वन टू वन है, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगी तो वन टू वन नहीं है। अब इनवर्स निकालते कैसे, सवाल। अब इनवर्स निकालने के लिए हमें ओ लेवल मैथ्स, IGCSE मैथ्स का इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबने लिख लिया है, कोई चीज ऐड ऑन तो नहीं करनी। स्क्रीनशॉट ले लें एहतियातन अगर लेना है तो, बाकी अगर आपने लिख लिया तो फिर मसला नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4, स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स। नाउ ओ लेवल मैथ्स को रिकॉल करें, इसमें भी हर कोई अलग अलग, मतलब कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें बहुत ज्यादा, तो कुछ अलग तरीके से सीखा हुआ होता है उन्होंने, राइट कॉन्सेप्ट उनको नहीं होता, बस उन्होंने रट्टा मारा हुआ होता है। तो इनवर्स में रट्टा नहीं मारना, स्टेप्स को फॉलो करना है। द फर्स्ट स्टेप, लेट fx इज इक्वल टू y। आपको ये बात बताई गई थी फंक्शन में भी कि भाई fx जो है वो y तो होता है, x होती है x एक्सिस और एक y एक्सिस होती है, तो y की जगह पे fx लिखा हुआ होता है। तो whenever you have to find the inverse of a function, the first step is to replace fx with y. I'm writing this, let fx equals to y, ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा, अब जैसे ही आपने ये लिखा तो आप इसको इंप्लीमेंट करें, fx की जगह y लिख दिया, y इक्वल्स टू 2x-3। अच्छा, यहाँ से एक बात और पता चलती है कि अगर fx इक्वल्स टू y है, चलें अभी पहले स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ये वाली चीज मैं बाद में बताता हूँ। पहला स्टेप है लेट fx इक्वल्स टू y, तो y की जगह, fx की जगह y लिख दिया। नाउ यू कैन सी दैट y इज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। नाउ यू हैव टू मेक x द सब्जेक्ट, आपको x को सब्जेक्ट बनाना होगा, x को आपको सब्जेक्ट बनाना होगा। तो लेट्स मेक x द सब्जेक्ट। तो अगर x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा y+3 डिवाइडेड बाई 2। x विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, x को सब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, x सब्जेक्ट बनाने के बाद एक बात याद रखें, व्हेनेवर वी आर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन यूज किया ना कि fx की जगह y ले लिया, तो मुझे 2 दफा का सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। fx इक्वल टू y से एक और बात पता चलती है, क्या भाई, क्या पता चलता है सर? बेटा सोचें कि अगर इस f को मैं वहां भेज दूं तो f वहां जाके f इनवर्स हो जाएगा और यहाँ x अकेला रह जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू f इनवर्स y। x is equals to f inverse y. Yes, we did in O levels, right? राइट सफा, हमने ओ लेवल्स में किया था, और मैंने स्टार्टिंग भी इनवर्स निकालने की लीनियर फंक्शन से ही की है, बिल्कुल वैसी जैसे ओ लेवल्स में करते थे।
क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए मैं कुछ नया बताऊंगा इंशाल्लाह, बट वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो द फर्स्ट स्टेप, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो वाई, एफ एक्स की जगह वाई रिप्लेस किया and y is the subject. Now we have to make x the subject. We have made x the subject. जब x subject बन गया तो fx equals to y से मुझे एक और बात पता चली कि x किसके बराबर होता है, x बराबर होता है f इनवर्स y के। तो जब x सब्जेक्ट बन चुका है तो x की जगह पे f इनवर्स y को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जिसका मतलब अब जब x सब्जेक्ट बन गया तो आपके पास f इनवर्स y आ गया, f इनवर्स y आ गया, x की जगह आपने f इनवर्स y रिप्लेस कर दिया। तो f इनवर्स y इज बेसिकली y प्लस 3/2। सर वी हैड टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। आप एफ इनवर्स वाई क्यों निकाल रहे हैं? बेटा स्टेप का पार्ट है, प्रोसेस का पार्ट है। एफ इनवर्स एक्स से पहले एफ इनवर्स वाई आता है। एफ इनवर्स वाई आने के बाद क्या करेंगे? हमें तो एफ इनवर्स एक्स निकालना था। तो क्या फर्क पड़ता है, वाई को रिप्लेस कर दें एक्स से, तो जहां जहां वाई होगा वहां वहां एक्स आ जाएगा। थ्रू आउट वेर एवर यू सी वाई, यू हैव टू रिप्लेस वाई विथ एक्स। तो द थर्ड स्टेप, रिप्लेस x by f इनवर्स y, x को f इनवर्स y से रिप्लेस किया, and then in the f inverse y you have to replace y by x. So finally the f inverse x would be x plus 3/2, x plus 3 divided by 2। यह जो है वो आपका f inverse x आ जाएगा। So this is going to be your final answer। अब देख सकते हैं f इनवर्स y आया, y को x से रिप्लेस कर दिया, तो यहां भी y की जगह x आ गया और यहां भी y की जगह पे x आ गया। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, सर ये जो आपने स्टेप दिखाया था क्या ये स्टेप जरूरी है? बेटा ये स्टेप बीच में आता तो है, ये तो कंफर्म है, इसके बगैर डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता। बट याद रख लें कि ये आप इसको ऑप्शनल कर देते हैं, इस स्टेप को आप ऑप्शनल बना दें। क्यों ऑप्शनल बना दे भाई? इसको ऑप्शनल बनाने की वजह यह है, ये इस स्टेप को ऑप्शनल बनाने की वजह यह है कि अगर एक्स सब्जेक्ट बन गया तो आप डायरेक्ट भी एफ एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स लिख के इस वाले वाई को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब मार्किंग स्कीम में यही देखा गया कि एक्स सब्जेक्ट के बाद वो डायरेक्ट आंसर ही देता है। तो इसका मतलब इस बीच वाले स्टेप की कोई खास मार्क्स नहीं होते, असल चीज तो इनवर्स का निकालना है ना। तो एक्स सब्जेक्ट बना लिया तो समझ लिया इनवर्स निकल गया। तो बीच वाला स्टेप हालांकि प्रोसेस का पार्ट है, रिकमेंडेड है कि भाई आप इसी प्रोसेस से होके गुजरे ताकि सारे स्टेप्स फॉलो हो, बट टाइम की लिमिटेशन होती है, जल्दी काम करना होता है, तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप दे सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, wherever where you see fx you replace it with y, then you see that y is the subject, so you have to make x the subject। फिर जब x सब्जेक्ट बन गया तो आप डायरेक्ट x की जगह पे f इनवर्स x लिखकर दूसरी तरफ जो y था उसको x से रिप्लेस करके f इनवर्स x दे सकते हैं। ये ओ लेवल मैथ्स की रिकॉलिंग हो गई इनवर्स फंक्शंस की, इनवर्स ऑफ अ लीनियर फंक्शन। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। तो हम जो है वो बात कर रहे थे इनवर्स फंक्शंस की, और कुछ डिस्कनेक्शन की वजह से अचानक हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो हमने ये सीख लिया कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। वी ऑलरेडी न्यू दिस राइट बिफोर, बट नाउ वी हैव रिकॉल्ड ऑल दीज स्टेप्स। सो दीज वी हैव, ऑल दीज स्टेप्स वी हैव इम्प्लीमेंटेड एंड वी हैव अप्लाइड। सो इज एवरीवन क्लियर? आई वांटेड एक्नॉलेजमेंट एट दैट टाइम, बट एक्नॉलेजमेंट मिली नहीं थी, तो सब एक्नॉलेज कर दें। सबको समझ आ गया? एक्नॉलेजमेंट है यहाँ तक? सब क्लियर है? ओके, हाँ, थम्स अप कर दें, वेरी गुड। थम्स अप इज गुड। जब तक मैं बोलूँ नहीं थम्स अप हटाइएगा मत, ताकि मुझे पता हो किसने थम्स अप करके हटाया किसने नहीं हटाया। दो बच्चों का रह गया, लैबा बसी और हारून। थम्स अप करके रखा करें, मैं बोलूँ ओके फाइन तो फिर हटाया करें। हाँ, हारून। चलें, ओके, क्लियर हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ लीनियर फंक्शन निकालना सीख लिया। तो इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए स्टेप्स क्या है? स्टेप्स तो वही हैं, बट एक बात याद रखें, इनवर्स फंक्शन में कभी हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि इसका इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि हर दफा इनवर्स फंक्शन 1 to 1 होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू चेक इज कि इसका इनवर्स निकलेगा भी या नहीं। लेकिन जब एग्जामिनर कहेगा ना इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन निकालो, तो आप उसमें देखेंगे कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर
जो डोमेन डिफाइंड होगा दैट वुड बी इन सच अ वे दैट इट वुड बी रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन वुड ऑलरेडी बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, या वो टर्निंग पॉइंट की राइट साइड कवर कर रहा होगा या लेफ्ट साइड. When the examiner has asked you to find the inverse of a function, inverse of a quadratic function, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करेगा. बट एक मसला सुने, अगर मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स निकालने की कोशिश करूंगा और इनवर्स फंक्शन इस तरह का है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई. नाउ y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. और अगर मुझे x को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी, अगर मुझे x को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं x को सब्जेक्ट बना ही नहीं सकता. भाई एक्स स्क्वायर भी और x भी, कौन बना सकता है x को सब्जेक्ट? x सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता. इट इज नॉट पॉसिबल कि क्वाड्रेटिक फंक्शन में तीनों टर्म्स मौजूद हो और x सब्जेक्ट बन जाए. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए ये जरूरी है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो फॉर्म हो वो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म हो. तो मेथड नंबर 1 इसी पे बात कर रहा है, मेथड 2 पे मैं बात करता ही नहीं हूं. मेथड नंबर 1 है ऑब्टेन the completed square form and find the inverse using the three-step approach. The three-step approach that we have applied for finding the inverse of a linear function can be applied for finding the inverse of a quadratic function, but for that we should be having completed square form. मेथड नंबर 1 की आप बात कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म होगी तो आप इनवर्स निकाल सकते हो 3 स्टेप अप्रोच के थ्रू. मेथड 2 भी अभी देखते हैं और जो नोट आपके सामने लिखा हुआ है उसको भी देखते हैं. तो पहले हम जो है सवाल एग्जांपल देखेंगे तो हमें बात समझ आएगी. तो यहाँ पर हमारे सामने जब एक सवाल आया एग्जाम्पल नंबर 5, तो हम इसको इसको हमें 2 मेथड से करके दिखाना है. सही है. हाँ, फिर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स की भी बात करेंगे इंशाल्लाह. इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है देख लिया. इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 to 1 हो. फिर फंक्शन जो है 1 to 1 है, इनवर्स निकल गया तो इनवर्स कैसे निकालना है. फिर एक चीज बतानी है, फंक्शन का इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है. अच्छा अब सुने, when we are told to find the inverse of a quadratic function, the function is fx equals to x square plus 2x plus 3 for the domain x is greater than equals to -1. अब डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये डोमेन टर्निंग पॉइंट के x के बाद हो, या पहले तो नहीं हो सकता, टर्निंग पॉइंट के x की राइट साइड को कवर कर रहा हूं. बट अभी तक मेरे पास टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है. बट जब मैंने देखा कि उसने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स एक्स निकालें, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स एक्स, तो मैं फौरन ये बात समझ गया कि यकीनन इसका इनवर्स निकलेगा. अच्छा ये ड्रामेबाजी नहीं है, कुछ बच्चे ड्रामेबाजी करते हैं. जैसे इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स एक्स, बच्चे लिख देते हैं नो द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. नहीं भाई, ऐसी कोई ड्रामेबाजी नहीं होनी. if the examiner has told you to find the inverse, then in that case inverse will definitely be found. inverse उस सवाल में निकलेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि इनवर्स मांगा जाए और इनवर्स ना निकले. जो इनवर्स मांगा है तो इनवर्स निकलेगा. लेकिन इनवर्स निकालने के लिए जो मेथड 1 की मैंने आपसे बात की, उस मेथड 1 के मुताबिक आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म. सो लेट्स डू वन थिंग, इसकी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म निकालते हैं. अच्छा, इसकी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म निकालने के लिए देयर आर मल्टीपल मेथड्स यू हैव, राइट. कंपेयरिंग कोएफिशिएंट भी है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है. तो हम इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स बी क्या होगा भाई, b1 होगा, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. ये इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जो हमारे साथ शुरू से हैं उनको सबको पता है. जो नए हैं वो क्वाड्रेटिक के अंदर जब ये लेक्चर 2, 3 वगैरह देखेंगे तो उनका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म. एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जो भी फंक्शंस पढ़ रहा है उसको क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ होना चाहिए उसका. सही है. और एंड में प्लस 3 हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x पहले से मौजूद था, 1 का स्क्वायर ऐड किया तो 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, बाकी प्लस 3 को एज इट इज कॉपी कर दिया. Now we know that these three are going to be converted to x plus 1 whole square. ये हो जाएगा x plus 1 whole square और -1 plus 3 हो जाएगा +2. So the completed square form the completed square form of the function fx is x plus 1 whole square plus 2.
x plus 1 whole square plus 2. Very good, Hassan. You gave the answer already in chat. It's perfect. fx equals x plus 1 whole square plus 2. ये आपका इनवर्स फंक्शन आ गया, नहीं सॉरी, ये आपका fx फंक्शन आ गया, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब इनवर्स निकल सकता है। पहले आप इनवर्स निकालने की कोशिश करते, fx को y बना भी देते तो x को सब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरी था कि आप कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में ऑब्टेन करते। नाउ यू कैन फॉलो द स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, लेट fx इक्वल्स टू y। ये हम कर रहे हैं मेथड नंबर 1 से, सही, ये मेथड नंबर 1 है। लेट fx इक्वल्स टू y, द फर्स्ट स्टेप, लेट fx इक्वल्स टू y, then you will do y equals to x plus 1 whole square plus 2। अच्छा देखें यहाँ डोमेन देखें, डोमेन इज x is greater than equals to -1, and if someone finds the x coordinate of turning point, it is -1 and the y coordinate is 2। अब देखें the coordinates of turning point are -1, 2 and domain restrict भी कहाँ से हुआ है, -1 से हुआ है। तो domain is covering the right side of turning point, the domain is covering the right hand side of turning point। डोमेन जो है टर्निंग पॉइंट की राइट साइड को कवर कर रहा है, ये आपने नोट कर लिया। इसका मतलब 1 to 1 होगा। अच्छा मैंने 1 to 1 तो है, ये तो कंफर्म होता है, बट राइट हैंड साइड ऑफ टर्निंग पॉइंट स्पेसिफिकली क्यों लिखवाया ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी स्टेप्स पे आ जाते हैं। द फर्स्ट थिंग, वी कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, क्योंकि इसके बगैर इनवर्स हम नहीं निकाल सकते थे मेथड 1 अगर हम फॉलो कर रहे हैं। देन लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई किया, और अब नाउ वी हैव टू मेक एक्स द सब्जेक्ट, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में आ चुका है, तो नाउ वी कैन मेक एक्स द सब्जेक्ट एज वेल। सो लेट्स ट्राई इट आउट। 2 को वहां शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, y माइनस टू, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। देन अगर हम चाहते हैं कि हम जो है square, now if I have to make x the subject, I'll have to remove the square. For removing the square, I will take a square root on both the sides। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, राइट साइड पर भी लूंगा, लेफ्ट साइड पर भी लूंगा। राइट साइड पर इसलिए लिया था ताकि स्क्वायर हट जाए, तो जब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लूंगा तो प्लस माइनस आएगा। जिस साइड पर स्क्वायर होता है, जिस साइड पर स्क्वायर होता है वहां स्क्वायर रूट लेते हैं तो वहां तो कैंसिलेशन हो जाती है। ऑन द अदर साइड वी हैव टू टेक प्लस माइनस एज वेल, तो वी हैव टेकन प्लस माइनस। अब अच्छा अब क्या करें, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ इट्स x प्लस 1 ओनली, क्योंकि स्क्वायर तो कट गया रूट के साथ, नाउ इट्स x प्लस 1 ओनली एंड वी हैव टू मेक x द सब्जेक्ट। तो ये जो प्लस 1 है इसको मैं कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, इसको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 2। अच्छा इक्वल टू x मैं यहाँ लिखूँ राइट साइड पर, या इक्वल टू x यहाँ लिख दूँ, एक ही बात है ना। मैं यहाँ ले आता हूँ, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 2। अच्छा फिर मैंने आपको ये बात बताई कि वंस यू हैव मेड x द सब्जेक्ट, एक दफा x आपका सब्जेक्ट बन जाए, एक दफा आपका x सब्जेक्ट बन जाए, तो उसके बाद क्या करेंगे, x सब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, x सब्जेक्ट बनाने के बाद आपको मैंने स्टेप बताया था कि आपने f इनवर्स y लिखना है, तो आपका f इनवर्स y आ जाएगा, फिर y को x से रिप्लेस करना है। बट मैंने ये भी बताया था कि अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली x को f इनवर्स x कह सकते हैं, लेकिन फिर आपको ख्याल ये रखना है कि दूसरी तरफ y को x से रिप्लेस करें, बिकॉज इफ यू फॉरगेट टू डू दैट यू लूज मार्क्स, मार्क्स कट जाएंगे भाई, याद रखें ये बात। तो मैंने कहा -1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 2, दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर। सर ये बात को समझ नहीं आई, ये आप प्लस माइनस दोनों लेकर चल रहे थे, चले x को आपने f इनवर्स x बनाया, डायरेक्टली एक स्टेप बीच में आपने ऑप्शनल स्टेप को ओमिट कर दिया, और y को भी आपने x से रिप्लेस कर दिया, ये तो मुझे समझ आ गया, ये तो हमें समझ आ गया, ये काम तो आपने पहले भी बताया। बट ये समझ नहीं आया कि आपने प्लस माइनस दोनों के बजाय सिर्फ प्लस कैसे ले लिया, हाउ एंड वाई। तो ऑलवेज रिमेंबर whenever you have to give inverse, because inverse only exists for a one-to-one function, this means when you're finding the inverse you will either take a positive, you will either take positive sign or either you will take negative sign, you cannot take both। यहाँ कहीं लिख लें अपने पास नोट्स पे ना, never
टेक, कहीं मैंने लिखा ही नहीं लिखा पता नहीं, हाँ ये लिखा हुआ है नोट्स में, लिखा हुआ है कि दोनों नहीं लेनी है आपने। नेवर गिव बोथ द साइंस टुगेदर एल्स अ मार्क वुड बी डिडक्टेड। कभी भी फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो प्लस माइनस तो आएगा। अच्छा कुछ बच्चे ना इत्तेफाक से प्लस माइनस लेना ही भूल जाते, मतलब भूल जाते, वो स्क्वायर रूट लेने में प्लस माइनस लेते ही नहीं, तो उनका आंसर हमेशा जो है पॉजिटिव वाला ही आता है, उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अच्छा जब सवाल के मुताबिक पॉजिटिव आंसर सही होता है तो उनका तुक्का चल जाता है, बट जब सवाल के मुताबिक प्लस नहीं बल्कि माइनस साइन लेनी होती है तो उनका मार्क कट जाता है। तो always remember that you have to choose one of the signs. Now which sign do we have to take? तो ये नोट फॉर्म में यही बताया जा रहा है। अगर आप एफ इनवर्स में ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है, सो फॉर दैट यू हैव टू चेक आउट द डोमेन ऑफ एफ एक्स। उसके लिए आपको क्या चेक करना है? डोमेन ऑफ एफ एक्स चेक करना है। डोमेन ऑफ एफ एक्स चेक करना पड़ेगा। अगर डोमेन ऑफ एफ एक्स टर्निंग पॉइंट की राइट साइड को कवर कर रहा है तो प्लस की साइन लेंगे। अगर डोमेन एफ एक्स का जो है वो टर्निंग पॉइंट की लेफ्ट साइड को कवर कर रहा है तो माइनस की साइन लेंगे। Yes, Isa, we chose plus cause it was on the right side because the domain was covering the right side of turning point. That is why जो मैंने लिखवाया था ना, यही बात कनेक्शन फॉर्म में है कि भाई ये जो नजर आ रहा है ना राइट साइड ऑफ टर्निंग पॉइंट, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर प्लस की साइन ली है। प्लस की साइन लेने की वजह क्या है कि एफ एक्स का जो डोमेन है वो टर्निंग पॉइंट की राइट साइड को कवर कर रहा है। तो अगर एफ एक्स एफ इनवर्स में प्लस या माइनस लेना है तो उसका दारोमदार एफ एक्स के डोमेन पर है। इफ द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज कवरिंग द राइट साइड ऑफ टर्निंग पॉइंट देन वील टेक द पॉजिटिव साइन। If the domain of fx is covering the left side of turning point, if it's covering the left hand side of turning point, then we have to choose the negative sign. ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव लेते हैं, it depends upon the domain of original function, that is fx. Covering the right side we take positive, covering the left side we take negative, क्योंकि यहाँ पर right side cover कर रहा है domain, because the domain is greater than equals to -1, turning point was -1, 2, तो -1 के बाद राइट साइड को कवर कर रहा है, लिहाजा हमें पॉजिटिव की साइन लेनी पड़ेगी। दोनों साइंस देंगे तो मार्क कट जाएगा, प्लीज याद रख लें, दोनों साइंस देंगे तो मार्क कट जाएगा। मसला क्या हो गया कि सर ने हर चीज घोल के पिला दी, उसके बावजूद बच्चे भंड मारते, गड़बड़ करते। भाई हर चीज लिखी हुई है ना, दिमाग कमजोर हो गए, सुन्नत को छोड़ दिया, रूटीन को छोड़ दिया, फजर के बाद हम सो जाते हैं ना, तो फजर से इशराक के दरमियान सोने से दिमाग कमजोर हो जाता है, हम लोग को पता ही नहीं कुछ। तो दीन से जुड़ने से दुनियावी फायदे भी होते हैं। तो मेमोरी को शार्प करने के लिए सुन्नत पे आए इंशाल्लाह, गुनाहों को छोड़ना है, सुन्नत पे आना है, रूटीन को बनाना है, इंशाल्लाह बरकत आएगी जिंदगी में, आखिरत में भी फायदा होगा। मेथड नंबर 1 कर लिया, मेथड 2 अभी नहीं किया, नोट पढ़ लिया। द डोमेन ऑफ एफ एक्स covers the right hand side of turning point, f inverse x must include the positive sign. If the domain of fx covers the left hand side of turning point, f inverse x must include the negative sign. राइट हैंड साइड ऑफ टर्निंग पॉइंट है तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टर्निंग पॉइंट है तो नेगेटिव लेंगे। बट याद रखना है याद ये रखना है कि नेवर गिव बोथ द साइंस टुगेदर एल्स अ मार्क वुड बी डिडक्टेड। मेथड नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया और कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि प्लस या माइनस में से कोई एक लेना है, दोनों नहीं ले सकते। कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे ये भी बता दिया। नोट भी कर लें, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसको नोट भी कर लें और एक्नॉलेज कर दें कि क्या सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि भाई क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म चाहिए। फंक्शन का 1 to 1 भी होना, फंक्शन को 1 to 1 भी होना चाहिए, फिर उसकी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म भी चाहिए। फिर जब एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस माइनस आएगा तो उन दोनों में से कोई एक साइन देनी है, दोनों नहीं देनी। सारी बातें बता दी, समझ आ गई? चेक एक्नॉलेज कर दें बेटा जल्दी, शाबाश। चले ये हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं भाई
मेथड नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं, सही है, ताकि इनवर्स वाला एस्पेक्ट तो हमारा मुकम्मल हो जाए ना। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स और ग्राफ ऑफ इनवर्स को हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इंशाल्लाह, सही है, ये हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में हमारा इंशाल्लाह। तो अभी हम कर लेते हैं, यस, मेथड नंबर 2 देख लेते हैं इसका। If you have to find the range, sorry, if you have to find the inverse function, inverse of a quadratic function, then method 1 says we have to use completed square form. Method 2 क्या कहता है? Method 2 says express y equals to fx in the form fx minus y equals to 0 and use the quadratic formula to find x. कह रहा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इनको y इक्वल्स टू एफ एक्स जो फंक्शन होगा उसको एफ एक्स माइनस वाई फॉर्म, एफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 फॉर्म में जो फंक्शन ऑफ x दिया हुआ होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है y को आप शिफ्ट करेंगे तो आपके पास एफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं x निकालने के लिए। यूजुअली हम मेथड 1 ही फॉलो कर रहे होते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि आप मेथड 1 रिकमेंडेड मेथड है। पहले तो तकरीबन टीचर सिखाते भी खाली मेथड नंबर 1 ही है, हम भी वही सिखाते थे। बट जब हमने देखा स्टूडेंट सवाल लेकर आते हैं कि सर इतना भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो हमने कहा भाई हाँ कर सकते हो, मेथड 2 के तौर पे इसको भी हम सिखा देते हैं। पता नहीं क्या चीज है जो गले को चुभ रही है। कहीं से स्मेल आ रही है, कुछ ऐसा कोई मसला हो रहा है शायद। बहरहाल, तो मेथड नंबर 2 जो है वो क्या है कि आपने एफ एक्स माइनस वाई इक्व टू 0 करना है। इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने कहा लेट एफ एक्स इक्व टू वाई, वो तो आपकी अपनी जगह है, तो लेट एफ एक्स इक्व टू वाई है, ये पहला स्टेप होगा। अब देखें एफ एक्स की जगह वाई आ जाएगा, तो मैं लिखता हूँ वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। पहला स्टेप वही हो गया, लेट एफ एक्स इक्वस टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 हो गया। अच्छा, अब जो वहां लिखा था ना एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा वो इक्वेट टू वाई होगा, तो वाई को इस तरफ ले आना और दूसरी तरफ इक्वल टू 0 बना देना। यहाँ देखें स्टेप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये कहना चाह रहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स जो है उसमें आप y को इसी तरफ ले आए और अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपको a b और c होना चाहिए ना, तो यहाँ से आप a b और c डिसाइड कर लें। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज a विच इज 1, x का कोएफिशिएंट इज b विच इज 2 एंड विदाउट x इज c, तो 3 माइनस 1। कभी इस तरह हमने किया नहीं ना कि दो वेरिएबल एक साथ इन्वॉल्व हो, बट यहाँ करना होता है। a इज 1, b इज 2 एंड c इज 3 माइनस 1। आप हमेशा मेथड 1 से कर सकते हैं, बट मेथड 2 सिखाना इसलिए जरूरी है, कुछ लोगों को स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है तो वो फिर पूछते हैं, तो हम ये मेथड के तौर पे सिखाते हैं। यूजुअली मेथड 1 इज रिकमेंडेड, व्हाई? बिकॉज यूजुअली व्हेन यू आर फाइंडिंग एन इनवर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म पार्ट नंबर 1 में आ चुकी होती, तो खाली उसी को यूज करना है। तो यूजुअली मेथड नंबर 1 यूज कर रहे होते हैं, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि इट इज अ रिकमेंडेड अप्रोच, आपने वही फॉलो करना है। सही है, रिकमेंडेड लिख दिया मैंने, इज रिकमेंडेड, छोटी सी जगह में लिखा है इसलिए शायद सही नजर नहीं आ रहा था, तो ये रिकमेंडेड यहाँ लिख दिया मैंने, सही है। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। अब क्या करें भाई, नाउ यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a। सही है जी। नाउ आई हैव अप्लाइड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ आई कैन सी दैट we have plus as well and we have minus as well. Now this will depend, because the turning point, because the domain is covering the right hand side of turning point, will take the positive sign. And if we are replacing, अब ये x सब्जेक्ट बन गया ना, देखे x को सब्जेक्ट के लिए तो बनाना था, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो x सब्जेक्ट तो बन गया, तो बस now x is a subject, now you can replace x by f inverse x and then you can give your answer। हो जाएगा -2 प्लस, प्लस माइनस दोनों था तो हमने खाली प्लस देना था, तो -2 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4 माइनस 12
चलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। 4 माइनस 12 प्लस 4y, 4y को 4x कर देते अपॉन 2। क्यों 4x किया? क्योंकि मैंने कहा ना एफ इनवर्स y अगर मैं लिखता तो यहाँ y लिखता, बट बिकॉज मैंने एक इस ऑप्शनल स्टेप बीच में छोड़ के डायरेक्ट x को एफ इनवर्स x कर दिया, मैंने आपको बताया था ऑप्शनल स्टेप छोड़ छोड़ सकते हैं, तो अब दूसरी तरफ x को y से रिप्लेस कर दिया, बट अभी फाइनल आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि 4 माइनस 12 जो है वो मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। ये जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4x -8, 4 माइनस 12 होता है -8 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर आप लॉक कर सकते हो। सर मुझे तो हमें ऐसा लग रहा है कि आंसर्स में जो है वो चेंज है कुछ। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से प्लस माइनस दोनों लिख दिया, प्लस माइनस दोनों तो लिख ही नहीं सकते, प्लस ही लिखेंगे खाली, सही है, खाली प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों नहीं लिख सकते, गलती से लिख दिया था। अच्छा अब ये जो है यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। सर ये जो आंसर हमारा मेथड 1 से आया है मेथड 2 से आया है, इनमें फर्क है। तो देखिए बेटा, एक्सेप्टेड ये वाला आंसर भी है, एक्सेप्टेड ये भी है, लेकिन ये वाला आंसर ये बन सकता है। कैसे बन सकता है, बना के दिखाऊं? बना के दिखाता हूँ। इस वाले आंसर मेथड 2 से जो आंसर आया है उसको बना के दिखाता हूँ, सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। लेट्स सिंप्लीफाई। सर क्या सिंप्लीफाई करना जरूरी होता अगर मेथड 2 से हमने किया होता? नहीं बेटा, जरूरी नहीं था। आपका इन्वर्स ये वाला भी सही है, लेकिन अगर वो सिंप्लीफाई करता तो क्या कर सकता था, देखे। मेरा तो काम है ना कि मैं आपको हर चीज बताऊं। -2 है, ब्रैकेट के अंदर अगर आप रूट के अंदर 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, 4 कॉमन x-2 हो जाएगा। 4 कॉमन लेने के बाद x-2 हो जाएगा, तो ये 4 रूट, 4 पे भी रूट लगेगा, x-2 पे भी रूट लगेगा। ये 4 रूट के रूट लगने की वजह से बाहर आके 2 हो जाएगा। रूट ऑफ 4 टाइम्स x-2। मैं इतने सारे स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। तो 4 को हमने जो है 4 ब्रैकेट x-2 है, ये 4 पे भी रूट लगेगा, x-2 पे भी लगेगा, तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा। तो 4 रूट से बाहर आके हो जाएगा 2, और रूट के अंदर रह जाएगा x-2 डिवाइडेड बाई 2। फिर आपको पता है मैथ्स का उसूल ये मैथ्स का उसूल है ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 मीन्स a/2 प्लस b/2। तो अब ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, फिर प्लस माइनस ले आया। तो आदत ऐसी है कि प्लस माइनस की, कि हम प्लस माइनस प्लस लेना है, खाली माइनस नहीं लेना। तो -2, यहाँ भी प्लस लिया हुआ, यहाँ भी प्लस लिया हुआ, यहाँ भी प्लस है। -2 प्लस 2 रूट ऑफ x-2/2। अच्छा अब ये a है, ये पूरा b है, और बीच में प्लस है, तो a प्लस b/2 इज a/2 प्लस b/2। तो -2/2 विल गिव अस -1, और +2 रूट x-2/2 विल गिव यू x-2। ये हो जाएगा x-2। तो f इनवर्स x आ गया, मेरे पास x इनवर्स x आ गया। दिस f इनवर्स x विल बी आवर फाइनल आंसर। तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आया था, और यहाँ मेथड 2 से सिंप्लीफाइड आंसर नहीं आया था, बट सिंप्लीफाइड आंसर देना जरूरी नहीं था। लेकिन मार्किंग स्कीम में हम यूजुअली देखते हैं वो आंसर सिंप्लीफाइड इसी फॉर्म में होता है, इसलिए मेथड 1 ही यूज हो रहा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस पार्ट नंबर 1 में या 2 में कहीं वो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में करवा चुका होता है, इसीलिए उसी को वो यूज करवाता है। इसलिए मेथड 1 रिकमेंडेड है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे मेथड 2 से आंसर निकाला, उसको सिंप्लीफाई किया, और वही आंसर बना दिया जो मेथड नंबर 1 से आया था। बस बॉटम लाइन ये है, यहाँ पर आपको थोड़ा लाइट भी नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो ये x-2 हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया प्लस माइनस, और ये हो गया स्क्वायर। सही है जनाब, ये मैंने थोड़ा डार्क भी कर दिया। एफ इनवर्स एक्स इज -1 प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस, सॉरी -1 प्लस रूट ऑफ x-2। -1 प्लस माइनस होगा तो एक नंबर कट जाएगा, तो खाली प्लस की साइन देनी है, क्योंकि डोमेन हमारा जो है राइट साइड ऑफ टर्निंग पॉइंट को कवर कर रहा है। सही है। मेथड 2 के थ्रू अगर आप ये आंसर देते ये भी सही था, मेथड 2 के थ्रू आप सिंप्लीफाई करके देते वो भी सही था, दोनों मसला नहीं है।
लेकिन ज्यादा बेहतर मेथड नंबर 1 था जो आपको सिंप्लीफाइड ही दे रहा था। इनवर्स निकालना क्वाड्रेटिक फंक्शन का मैंने आपको दोनों मेथड से सिखा दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई है? एक्नॉलेज कर दें ताकि क्लास हम एंड कर दें जल्दी से, शाबाश। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थम्स अप, थम्स अप, सब थम्स अप कर दें, शाबाश। चलें, जबरदस्त। लाइबा अब्बासी, योर थम्स अप का मैसेज तो नहीं आया, नहीं आया। लाइबा अब्बासी, आपने थम्स अप नहीं किया, समझ आया नहीं आया? ओके, आ गया ना? सही है, सबने थम्स अप करना है और चैट पे एक्नॉलेज भी, ये चैट पे एक्नॉलेज कर दें, दोनों में से कुछ एक तो करें। सही है, चले, अलहमदुलिल्लाह क्लियर हो गया जितना पढ़ाया है अब तक। फंक्शंस को पूरा रिकैप करके आइएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स और इनवर्स की स्केचिंग। थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप करके फंक्शंस की एक्सप्लेनेशन, फाइनली जो बड़ी एक्सप्लेनेशन है वो वाइंड अप हो जाएगी इंशाल्लाह। बड़ा टॉपिक है बहुत फंक्शन, जो कि इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें एक एस्पेक्ट है, लेकिन अभी हम पहले पास करेंगे फंक्शंस के प्रॉपर भरपूर तरीके से, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आप सबको भी दोनों जहानों की भरपूर कामयाबियां अता फरमाए, ज़िंदगी में सुकून अता फरमाए, जो मामलात हैं हर मामलात में आफियत अता फरमाए। ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, उलमा का नाम से सुनिए भी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। ए अल्लाह, मुझे मुझे माफ़ फरमा। ए अल्लाह, सवाल कर रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह हमें माफ़ फरमा और हमें आफियत अता फरमा, फिद दुनिया, दुनिया में, और फिल आखिरा, और आखिरत में भी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा वल आखिर, और दुनिया में भी हमें आफियत दे और आखिरत में भी आफियत दे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दुआज। एंड यू चलते फिरते आप विद करें, जिक्र अपनी जबान पे तर रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।